حضرت اسعد بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ اگر ایک آدمی پورب میں ہو اور دوسرا پشچم میں اور دونوں کا مرنے کا وقت ایک ہو، یا کسی ایسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں بیماری پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ یعنی ان حالاتوں میں کس طرح روحوں کو قبض کرتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے بیچ میں سما جاتی ہے اور میں انہیں آسانی سے قبض کر لیتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ حضرت وہاب ابن منبہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا اور پہننے کے لیے بہترین لباس اور سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی۔ پھر وہ اس پر سوار ہو کر بڑے شان و شوکت اور گھمنڈی انداز سے نکلا، جیسے کہ اس کے سامنے کسی آدمی کی اہمیت نہیں تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور گندے بال والا شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بتاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں دھیرے سے بولا کہ میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ بدل گیا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور کہنے لگا بس مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی کچھ ضرورتیں پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے، اب تو کبھی اپنے گھر والوں اور اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے کسی بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت اعمش سے روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ لیکن جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور کچھ برگزیدہ بندوں کے۔ لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں کہ ہر ذی روح یعنی ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی موت کے بارے میں پوری طرح سے پکا یا نشچیت جانکاری نہیں دے سکتا، لیکن بزرگوں نے اس بارے میں پیشن گوئی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو جان لے کہ موت واقع ہونے والی ہے اور اسے چند دنوں کے اندر موت آنے والی ہے۔ ان نشانیوں کو پوری ڈیٹیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں
जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और बड़ी ही खूबसूरती अता की गई थी। इतनी खूबसूरती कि मिस्र की शहजादियों ने जब देखा तो उन्होंने अपनी उंगलियां ही काट डाली। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस तरह मग्न हो गई थी कि उनकी नजरें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर थी और उन्होंने सेब और छुरी पकड़ी हुई थी। सेब की जगह वे अपने हाथ काट रही थी, उंगलियां काट रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे, जबकि वे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत के बीच गहरी दोस्ती थी। तो आपको बता दें कि इस बारे में कुरान और सही हदीस में कोई साफ बात नहीं है, लेकिन ये कहानी हमें एक नसीहत देती है। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाके में किसी की रूह निकालने जाते थे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर जरूर आते और उनसे मुलाकात करते, क्योंकि उनकी गहरी दोस्ती और याराना था। यानी जिस तरह हम इंसान जब कभी अपने किसी दोस्त के इलाके में जाते हैं तो अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए उसके घर जरूर जाते हैं, इसी तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मौत का फरिश्ता जब भी उस इलाके में चक्कर लगाते तो अपने दोस्त यानी याकूब अलैहिस्सलाम से जरूर मुलाकात करते और बताते थे कि मेरा आना इस तरह हुआ है कि मैं फलां की जान कब्ज करने जा रहा हूँ या फलां की रूह निकालने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने एक नसीहत भरी कहानी बयान की है। हालांकि ये कुरान या सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन इसमें सीखने और सोचने के लिए एक अहम सबक मौजूद है। कहा जाता है कि एक दफा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने फरमाइश रखी कि ऐ मेरे दोस्त, जब तुम मेरी रूह निकालने आओगे यानी मुझे इस दुनिया से लेने के लिए आओगे तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे पहले जरूर बता कर आओगे। मौत के फरिश्ते ने अपने दोस्त से हामी भर ली कि जब कभी आपकी रूह निकालने आऊंगा तो पहले आपको इस बात से बाखबर कर दूंगा। दोनों दोस्तों के बीच ये बात तय हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दिन गुजरते गए, चलने फिरने की ताकत खत्म हो गई, खाने पीने की लज्जत खत्म हो गई, यानी जबान का जायका खत्म हो गया। अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कमर टेढ़ी हो गई और आप झुक गए। रिज्क का जो दाना पानी था वो भी खत्म हो गया और मौत का वक्त करीब आ गया। उसी दिन मलकुल मौत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को देखा तो पूछा, किधर आना हुआ, क्या मुलाकात के लिए आए हो? तो मौत के फरिश्ते ने कहा, नहीं, मुलाकात के लिए नहीं, बल्कि आज तो मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे दोस्त, हमारे बीच ये बात तय हुई थी कि जब तुम मेरी रूह निकालने आना तो मुझे पहले बता कर आना, लेकिन तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। तुमने मुझसे ये वादा किया था कि मैं आने से पहले बताऊंगा, तो आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए था। तब मलकुल मौत ने अर्ज की, आए अल्लाह के नबी, आपके साथ मेरी गहरी दोस्ती है। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ किया हुआ अपना वादा भूल जाता और आपको ना बताता? आए अल्लाह के प्यारे नबी और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार बताया कि मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आने वाला हूँ। मैंने आपको बार बार खबरदार किया और कई बार बताने के बाद ही आपके पास आया हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैरान हुए और पूछा, वो कैसे? तो मलकुल मौत ने अर्ज की, आए अल्लाह के नबी, क्या आपको याद है कि आपके इलाके में मैंने फलां बिन फलां की रूह निकाली थी और उसकी तदफीन भी आपने अपने हाथों से की थी? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर मलकुल मौत ने कहा कि आप ही के इलाके में मैंने फलां बिन फलां बच्चे की रूह भी निकाली थी, क्या आपको उसका भी याद है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मुझे याद है। तब मौत के फरिश्ते ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ उनकी रूह कब्ज करने नहीं आया था, बल्कि आपको ये इशारा भी करने आया था कि आज इनकी बारी है और आप भी तैयारी कर लें। आज इस बूढ़े की बारी थी
आज इस बच्चे की बारी थी और अब आपकी बारी आने वाली है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको बार बार खबरदार कर चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, मौत का फरिश्ता जब हमारे हमसाए यानी पड़ोसी की रूह लेने आता है तो वो सिर्फ उसकी मौत का सामान लेकर नहीं आता, बल्कि हमें भी चेतावनी देकर जाता है कि आज इसकी बारी थी, कल तुम्हारी भी बारी हो सकती है। इसी से साबित होता है कि जब मोहल्ले में मौत का फरिश्ता आ जाए और किसी की रूह निकाल कर ले जाए तो बाकी रहने वालों को भी सजग हो जाना चाहिए कि आज अगर मेरा ये करीबी दोस्त, हमसाया, रिश्तेदार चला गया तो कल मेरी भी बारी आ सकती है। आज अगर मेरा भाई चला गया है, बाप चला गया है, माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई है, तो ये सिर्फ उनका जाना नहीं है, बल्कि कल हम भी उनके पीछे जाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी के लम्हात हमारे लिए बेशकीमती है। इन लम्हों को गनीमत जानो और बर्बाद ना करो। जैसे बर्फ पिघलती जा रही है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक शख्स किसी बाजार से गुजरा तो उसने देखा कि एक आदमी बर्फ बेच रहा है और वो रो रो कर कह रहा है कि ऐ दुनिया वालों, मेरी बर्फ पिघलती जा रही है, इसे मुझसे खरीद लो। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसकी पूंजी पिघलती जा रही है। मेरी बर्फ कतरा कतरा करके पानी बनती चली जा रही है। तुम पर खुदा का वास्ता है, मुझसे ये बर्फ खरीद लो, क्योंकि अगर मेरी ये बर्फ ऐसी ही पिघलती रही तो मुझे नुकसान हो जाएगा और मैं नुकसान का सामना करूंगा। वहां मौजूद एक समझदार इंसान ने उसकी बात सुनी और उसके पास जाकर कहा, भाई, जिस तरह तेरी बर्फ पिघल रही है उसी तरह मेरी जिंदगी भी पिघलती जा रही है। बर्फ बेचने वाले ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? तो उस शख्स ने कहा, जनाब, जिस तरह तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है, ठीक उसी तरह मेरी जिंदगी के लम्हात भी एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। जैसे तेरी बर्फ पिघलने से पहले बिक जाए तो तुझे कुछ हासिल होगा और तेरा नुकसान नहीं होगा, वैसे ही अगर मैं अपनी जिंदगी के पिघलते लम्हों को सही कामों में लगा दूं तो मुझे भी कुछ न कुछ मिल जाएगा और कयामत के दिन नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर तू अपनी बर्फ को पिघलने से पहले बेच देगा तो तुझे बदले में कुछ हासिल होगा और तेरा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तू इसे यूं ही पिघलने देगा तो तुझे खाली हाथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं अपनी जिंदगी के पिघलने से पहले नेक अमल ना करूं तो मुझे भी आखिरत में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें जिंदगी की असलियत समझाता है। हम भी उस बर्फ बेचने वाले की तरह हैं। हमारी जिंदगी भी बर्फ की तरह ही धीरे धीरे पिघलती जा रही है और अगर हमने इन लम्हों को सही कामों में इस्तेमाल नहीं किया तो हमें भी घाटे का सामना करना पड़ेगा। हजरत अली उल मुर्तजा ने फरमाया कि जब इंसान की जिंदगी में ये 3 निशानियां जाहिर हो जाएं, तो समझ लो कि मौत का फरिश्ता कभी भी दस्तक दे सकता है और उस इंसान का मौत करीब है। नंबर 1, जब काले बाल सफेद होने लगे। नंबर 2, जब बदन में तवानाई यानी ताकत खत्म हो जाए। नंबर 3, जब कमर झुक जाए यानी कमर टेढ़ी हो जाए और जिस्म में ताकत ना बचे। जिस्म में हाथ तो है लेकिन छूने की ताकत नहीं है, पैर तो है लेकिन चलने की हिम्मत नहीं, खाने पीने का सामान तो है लेकिन खाने में मजा नहीं, दौलत तो है लेकिन बुढ़ापे का इलाज नहीं हो सकता। जब ये निशानियां जाहिर होने लगे तो समझ लो कि मौत करीब है। मौत हमें हर हाल में आनी है, चाहे हम तैयार हों या ना हों। इसलिए जिंदगी के पिघलते लम्हों को गनीमत जानो और अपने अमल को सुधार लो ताकि आखिरत में खसारे यानी घाटे का सामना ना करना पड़े। इससे पहले कि मौत के हाथ हमें अपने शिकंजे में ले ले और हमारी रूह हमारे जिस्म को छोड़कर खालिक हकीकी की जानिब रवां दवां हो जाए, हमें चाहिए कि अपने आप को अल्लाह ताला की रजा यानी खुशी के मुताबिक ढाल लें। हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस फानी दुनिया की हर चीज, हर रिश्ता और हर माल मता यहीं रह जाने वाला है, लेकिन हमारे साथ जाने वाले हमारे अच्छे या बुरे अमल हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अमल सही कर लें और अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी मौत की सख्ती को आसान फरमाए, हमारी आखिरी मंजिल को खुशहाल बनाए और हमें इस दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत होने की तौफीक